بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 13 ارب روپے کے وزیر اعلیٰ پیکج میں سے 84 کروڑ روپے جلد جاری ہوں گے۔ کام بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کی یقین دہانی۔ اجلاس میں متعدد افسران کی غیر حاضری پر پارلیمنٹیرینز نے رپورٹ حکومت پنجاب کو بھیجنے کی سفارش کر دی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی کمپلیکس میں ہوا۔ صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو، ایم این اے راجہ ریاض، ایم پی ایز شکیل شاہد، فردوس رائے، میاں وارث عزیز و دیگر پارلیمنٹیرینز، ڈپٹی کمشنر محمد علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور سرکاری افسران شریک ہوئے۔ محکمہ صحت نے بریف کیا کہ 3,22,000 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، 21,000 مثبت رہے اور 875 اموات ہوئیں۔ 19 سینٹرز پر 2,20,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ پارلیمنٹیرینز کو ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فیصل آباد میں لنک روڈ جو ہے تقریباً 55% بن گئی ہے۔ جو مسنگ لنک ہے اسے ہم بنانے جا رہے ہیں لنک روڈ کا۔ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ فیصل آباد میں جو روڈز کی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روڈ کی سارے فیصل آباد کی مین روڈ جو ہیں اس کا ٹینڈر اخبار میں چلا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 15 کو اوپن ہونا ہے، اس کے بعد اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ انصافی ہوتی رہی ہے ہمارے شہر کے ساتھ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جون کے بعد ہم اپنے فیصل آباد کے لیے ایسی ایک بس سروس لے کے آئیں گے جو فیصل آباد کے غریب لوگوں کے لیے ہوگی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر کے تحت صفائی نکاسی آب کا کام جاری ہے۔ 13 ارب روپے کے وزیر اعلیٰ پیکج کے لیے 84 کروڑ روپے جلد جاری ہوں گے اور کام بھی شروع ہو جائے گا۔ سی او فیسکو، جی ایم سوئی گیس، پرنسپل میڈیکل کالج، ڈائریکٹر کالجز، سی او بلدیہ، سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن، سی او ہیلتھ، ایکسین بلڈنگز 1، ایکسین بلڈنگز 2، ایکسین ایم اینڈ آر، چیف اریگیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ اور دیگر افسران اجلاس میں حاضر نہ تھے، جس پر پارلیمنٹیرینز نے برہمی کا اظہار کیا، جبکہ ان کے خلاف رپورٹ حکومت پنجاب کو ارسال کرنے کی سفارش کی۔ اجلاس میں ٹی او آر بنائے گئے کہ پارلیمنٹیرینز کا نمائندہ نہیں بیٹھ سکے گا، ماتحت افسران بھی نہیں آئیں گے۔ ہر 2 ہفتے کے بعد جو ہے یہ میٹنگ ہوا کرے گی، اور اس کے منٹس جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجے جائیں گے، اور جو بھی ایم این ایز ایم پی ایز کی شکایات ہوں گی وہ پہلے سے جو ہمارا آفس ہوگا وہاں پہ وہ سبمٹ کریں گے، اور اس کے حوالے سے پھر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کے اوپر اپنا جواب بھی دیں گے، اور جو اوور آل پروگرس ہوگی اس کے حوالے سے بھی اس میٹنگ میں بتایا کریں گے۔ سی پی او، ڈی جی ایف ڈی اے، ڈی جی پی ایچ اے اور چیف انجینئر ایف ڈی اے تاخیر سے پہنچ گئے، جنہوں نے محکمے کی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ادھر اساتذہ کی کوالیفیکیشن سرکاری اسکولوں پر سوالیہ نشان۔ پنجاب بھر میں تعلیم کا معیار کیسے بہتر ہو؟ فیصل آباد ڈویژن کے 2,624 اساتذہ سمیت صوبہ بھر میں 20,282 اساتذہ صرف میٹرک پاس ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی بڑی تعداد میٹرک پاس ہوگی تو معیار تعلیم کیسے بہتر ہوگا؟ اسکول انفارمیشن سسٹم ریکارڈ کے مطابق فیصل آباد ڈویژن بھر کے 2,624 اساتذہ سمیت صوبہ بھر میں 20,282 اساتذہ صرف میٹرک پاس نکلے۔ ایسے میں پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کا معیار کیسے بہتر ہوگا؟ میٹرک پاس بھرتی اساتذہ نے آج تک اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ نہیں کیا، جبکہ محکمہ تعلیم نے بھی ایسے اساتذہ کو ڈگری کی طرف راغب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، لہٰذا محکمہ کے پاس ان اساتذہ کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ضلع فیصل آباد میں 1,076، جھنگ میں 688، چنیوٹ میں 205 اور ٹوبہ ٹیک کے 560 اساتذہ بھی اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، جبکہ صوبہ بھر میں 12,000 اساتذہ کی تعلیم صرف انٹرمیڈیٹ ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جھنگ کے نرسنگ اسکول میں کورونا ویکسینیشن سینٹر محکمہ صحت کی غفلت کا شکار ہے۔ سینٹر میں گرمی اور اندھیرے کا راج برقرار۔ سی ای او ہیلتھ کے دفتر سے چند قدم کے فاصلے پر نرسنگ اسکول میں بنے کورونا ویکسینیشن سینٹر میں سہولیات کے فقدان نے دیگر سینٹرز میں انتظامات کا پول کھول دیا۔ 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سینٹر میں بجلی بند ہونے پر کوئی متبادل انتظام نہیں۔ ویکسینیشن سینٹر میں بجلی خراب ہونے پر کمروں میں اندھیرا چھا گیا، جس پر عملہ موبائل فون کی روشنی کے ذریعے ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن سینٹر میں گرمی اور حبس سے شہریوں کا برا حال ہو گیا۔ بزرگ مرد و خواتین سمیت دیگر شہری پسینے میں شرابور ہو گئے اور افسران کو خبر تک نہ ہو سکی۔ شہریوں نے گرمی کے دوران بہتر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ لائٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ جنریٹر کا ویل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولیات مل سکیں۔ بجلی تو نہیں، لائٹ ہونی چاہیے، لائٹ کے بغیر کیا ہے، صحیح ہونا چاہیے۔ لائٹ نہیں ہے جناب، انتظام کیا جائے۔
सिटी 41 की निशानदेही पर महकमा सेहत हरकत में आया और बिजली की बहाली के लिए इकदामात किए। बिजली बहाल होने पर शहरियों और अमले ने सुख का सांस लिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। चिन्योट में हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस पास्को फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम ना कर सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर तीसरे रोज भी आटा नहीं पहुंच सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों के डेरे। हुकूमती अदम तवज्जी कहें या मुबैना गफलत और लापरवाही, सस्ते यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट की अशिया का काल पड़ गया। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट के आटे की फराहमी के लिए पास्को की जिम्मेदारी लगा रखी थी। ताहम 3 रोज से यूटिलिटी स्टोरों पर आटा मौजूद नहीं और गुज़श्ता हफ्ते से चीनी, घी, दालें और ऑयल भी यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद नहीं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर हैं। 8 किलोमीटर दूर मौजा बाबूराय से आए दिहाड़ीदार मजदूर का कहना है किसी यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं। शहर में जितने स्टोर हैं हम वहाँ से फिर रहे हैं, सवेर से कल भी आज भी 3 दिन हो गए मुझे भटक रहा हूँ और कहीं से आटा नहीं मिलता है, किधर चीनी नहीं मिल रही है। जब जाते हैं एक दफ़ा एक घी के पैकेट दे दें यूटिलिटी स्टोर वाले तो वो फिर से कहते हैं ये आप खाएं ना। इस टाइम यूटिलिटी स्टोर पे अभी ना चीनी मिलती है, ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिलती। लिहाजा हुकूमत को चाहिए मेहरबानी करें थे, गरीब वहाँ बड़ी परेशान है, अगे महंगाई बड़ी हुई पे। खरीदारों ने मजीद कहा कई रोज से सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी और ऑयल भी यूटिलिटी स्टोरों पर दस्तयाब नहीं है। अब ओपन मार्केट से खरीदारी करनी पड़ेगी। खरीदारों ने वजीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पास्को फ्लोर मिलों को गंदम की फराहमी यकीनी नहीं बना सकी, जिससे आज तीसरे रोज भी चिन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर आटा नहीं पहुंचा। खरीदार जिस हवाले से परेशान है और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर मिलों को गंदम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अली सेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताएं, सितारा केमिकल्स ग्रुप ने सितारा टेक्नो पार्क के नाम से फैसलाबाद में सबसे पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ एक तकरीब में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। फैसलाबाद के सबसे बड़े सनती ग्रुप से सितारा केमिकल्स आईटी इंडस्ट्री के फरोग और एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए मैदान में आ गया। फैसलाबाद में सितारा टेक्नो पार्क के नाम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम करने का ऐलान कर दिया। ये शहर का सबसे पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगा। इस सिलसिले में सितारा केमिकल्स ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां मोहम्मद अदरीस और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के एमडी उस्मान नासिर के दरमियान इस्लामाबाद में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर सीईओ मियां मोहम्मद अदरीस का कहना था कि फैसलाबाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कयाम का मकसद आईटी इंडस्ट्री का फरोग और एक्सपोर्ट में इजाफा है। ग्रुप की तरफ से कहा गया कि मुल्क की आईटी कंपनीज को स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, बगैर रुकावट इलेक्ट्रिक और इंटरनेट सहूलियात की फराहमी, मार्केट कॉन्टैक्ट के नए बिजनेस स्टार्ट करने के पहले और मौजूदा कंपनियों को सपोर्ट करने के हवाले से सितारा टेक्नो पार्क सबसे बड़ा साबित होगा, जबकि मुल्क में आईटी की तरक्की के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के शाना बशाना अपना किरदार अदा करेगा। और फैसलाबाद में सहाफ़ी कॉलोनी के कयाम के सिलसिले में अहम पेशरफ, डीजी एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम से एमडी पंजाब, जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन शाहिद फरीद और सदर प्रेस क्लब जीए तनवीर ने मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल एफडीए फैसल अजीम ने इस बात पर जोर दिया कि फैसलाबाद में सहाफ़ी कॉलोनी का कयाम के लिए लाहौर और मुल्तान मॉडल पर गौर करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि एफडीए इंतज़ामिया फैसलाबाद में सहाफ़ी कॉलोनी के कयाम के सिलसिले में हुकूमती इक़दामात में ताउन के लिए पुरज़्म है। इस अहम मंसूबे को कामयाब बनाया जाएगा। सहाफ़ियों के रहायशी प्लॉट्स के लिए एफटीए सिटी में फिलवक्त 100 केनाल एराजी दस्तयाब है। मजीद के लिए कोशिश भी की जाएगी। एमडी और डिप्टी एमडी पंजाब, जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के अलावा ग्रुप लीडर शाहिद अली, सदर प्रेस क्लब जीए तनवीर, एफडीए के अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। आपको बताएं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर नईम असलम का तबादला। प्रोफेसर डॉक्टर नईम असलम को एफआईसी में तैनात कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नईम असलम एफआईसी में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर नईम असलम का तबादला कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर नईम असलम को एफआईसी में तैनात कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नईम असलम एफआईसी में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। महकमा रेवेन्यू का अहम फैसला, नायब पटवारी भर्ती करने की समरी तैयार कर ली गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मंजूरी, हतमी फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक पटवारियों के मुंशी रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके बाद इंतकाल, रजिस्ट्री और फंड का काम सुस्तरवी का शिकार हो रहा था।
अब नायब पटवारी मुंशी के फराज सर अंजाम दे सकेगा, जिसके बाद रेवेन्यू कामों में तेजी लाई जा सकेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हर इजला में खाली नशिस्तों की फहरिस्त बनाकर उसके मुताबिक भर्तियां की जा सकेंगी। पीर महल में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के समरात आवाम तक न पहुंच सके। शहर और गिरदोनवाह में अरसा दराज से कूड़े के ढेर मौजूद हैं। शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, जहां देखें कूड़ा क्रिकेट पड़ा है। ताफन ज़दा माहौल में सांस लेना मुहाल हो चुका। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम शुरू तो कर दिया गया, मगर हमेशा की तरह तहसील इंतजामिया ने अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी। इस बार भी अवामी प्रोग्राम के समरात अवाम तक न पहुँच सके। छोटे छोटे साढ़े देखते इन्नी गंदी स्मैल आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है इस कचरे तो। पूरे पीर महल का कचरा इत्थे आ रहा, और भी जाइदा गलियां कोई कचरा नहीं, सफाई नहीं हो रही हैगी। बेहतर है सफाई कराई जाए। इलाका मुकीन खवातीन भी तहसील इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं जो फौरी खत्म कराए जाएं। महल्लों में पड़ी खाली जगह पर पार्क बनाए जाएं ताकि बच्चे खेल कूद सकें और उन्हें अच्छा माहौल मिल सके। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਂਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ। वजीर आला पंजाब का अवामी प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर एक अच्छा इकदाम है, मगर पीर महल में ताहाल तहसील इंतजामिया इसको कामयाब बनाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है, जिसका मुंह बोलता सबूत जगह जगह पड़े कचरे के ढेर है। नैयर शिराजी, सिटी 41, पीर महल। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग शहरियों से पानी की मद में बिल वसूल करने में नाकाम। सालाना हदफ का सिर्फ 60% बिल ही वसूल किया जा सका। म्यूनिसिपल कमेटी शहरियों से पानी की मद में बिल वसूल करने में नाकाम नजर आई है। सालाना मिलने वाले हदफ में से सिर्फ 60% ही मुकम्मल कर सकी। इंतजामिया की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी को 3,69,48,000 रुपए का हदफ दिया गया, जबकि अभी तक 2,79,510 रुपए ही वसूल किए जा सके। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफ और रहमान कहते हैं कि 1 माह बाकी है, कोशिश कर रहे हैं हदफ मुकम्मल कर लिया जाए। मुलाजमीन का इजाफा किया गया है ताकि बिल ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जा सके। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा 3,69,00,000 का टारगेट था, जो कि रिकवरी जो है हमें महसूस हुआ 2 महीने पहले कि वो टारगेट से शायद हम मिस कर जाएंगे, और हमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी हिदायत दी थी कि इसको जो है टारगेट अचीव होना चाहिए। तो उसके बाद हमने एक और टीम ऐड कर दी है। इस वक्त 3 टीमें जो हैं वो शहर में वाटर रेट की वसूली कर रही हैं। चीफ ऑफिसर का कहना था कि अब जो बिल जमा नहीं करवा रहा है इसका कनेक्शन काटा जा रहा है। नाजायज़ जो कनेक्शंस हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन चल रहा है, और मुतअद्दिद नाजायज़ कनेक्शंस को फिलहाल तक काटा जा चुका है। इसके अलावा जो हमारा इंशाल्लाह 30 जून तक हम अपने रिकवरी का टारगेट जो है, जो रूटीन चल रही है, जिस तरह से रिकवरी इंप्रूव हुई है उसमें टीम ऐड करने से बेहतरी आई है, तो इंशाल्लाह हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी अदारे भी गुज़िश्ता कई सालों से पानी का बिल जमा नहीं करवा सके। क्या इनके भी खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? देखना है कि म्यूनिसिपल कमेटी क्या 1 माह में 1.5 करोड़ रुपए का जो रहते हैं बिल वो वसूल कर पाएगी, या माजी की तरह इस दफ़ा भी बेहतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है आला हुकाम को पहुंचा देगी। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्स। बजट में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए हुकूमत का 60 बिलियन का मुआशी सहारा देने का ड्राफ्ट तैयार, लेकिन दूसरी तरफ कड़ी शराइत अज़ाब के मुतरादिफ हैं। हुकूमत की जानिब से आने वाले बजट में छोटे सनतकारों के लिए 60 अरब मुख्तस करने का प्लान। सनतकारों को लेटरल यानी प्रॉपर्टी या घर गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से 3 साल में 60 अरब स्टेट बैंक के जरिए दिए जाएंगे। हुकूमत ने सहूलत के साथ कड़ी शराइत लगाकर सनतकारों को सहूलत से दूर कर दिया। साबिक चेयरमैन एपबोमा आरफ एहसान मलिक कहते हैं, हुकूमत का इकदाम अच्छा, लेकिन ऐसे इंटरेस्ट ज्यादा से सहूलत का कोई फायदा नहीं। इंटरेस्ट रेट को कोलेटरल या एक्सपोर्टर्स के बराबर किया जाए तो बेहतरीन सहूलत होगी। इसमें जो मार्कअप की शरह है वो 9% है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि अगर आप एसएमईज़ की रियल ग्रोथ चाहते हैं तो मार्कअप की शरह को 3 से 5% पर लेके जाएं, इससे ज़्यादा ना करें। छोटे एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से शराइत नरम करते हुए सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मियां फारूक हबीब का अली ज़ेब फाउंडेशन सेंटर का दौरा। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात की। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर बिजनेसमैन अमल कर रहे हैं, जिसके सबब स्टॉक एक्सचेंज तेजी से ऊपर जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में 13% इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बिलावल भुट्टो को तरक्की नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत तनकीद के बजाय अपने सूबा पर तवज्जो दे, जबकि शहबाज शरीफ PDM को जमा करने से पहले मुस्लिम लीग नून को जमा करें। बिजनेसमैन का इत्मीनान है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और तेजी से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो
ऊपर से ऊपर जा रही है और यही वजह है कि तमाम जो मईशियत के इशारिये हैं वो तमाम जो है मुस्बत हो चुके हैं। फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत किसी को एनआरओ नहीं देगी, हुकूमत खसूसी बच्चों पर तवज्जो दे रही है। जनूबी पंजाब में गैंग के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। एक तो चोर डकैती के साथ साथ उनका जो तरीकाकार आपने देखा कि वहशियाना जालिमाना, वो किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है, ऑपरेशन हो रहा है और इनका जो है वो किला कमा करेंगे, इनकी सरकोबी भरपूर तरीके। इस दौरान उन्होंने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और इनके वालिदैन से मुलाकात भी की। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में हादसात की शरह में इजाफा। पंजाब हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस एजुकेशन यूनिट ने चिन्योट का दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिन्योट में रोजाना तकरीबन 20 हादसा होते हैं। इस सिलसिला में पेट्रोलिंग पुलिस एजुकेशन यूनिट ने खसूसी तौर पर फैसलाबाद से आका तलबा शहरियों में आगाही पंफलेट्स और मार्क्स तकसीम किए। लोगों ने आगाही की सरगर्मियों को सराहा। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर वो अवेयरनेस कर रहे हैं तो अच्छा है, ये हमारा ही फायदा है। हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। सब ड्राइवरान हजरात से गुजारिश है कि वो हेलमेट इस्तेमाल करें और गाड़ियों वाले भी सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल करें। ये हमारी अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है और सबको इस पे अमल दरामद करना चाहिए। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट रिजवान भट्टी ने रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी। तो हमारी पेट्रोलिंग पुलिस की जो हेल्पलाइन है 1124, वो तमाम जो रोड यूज़र हैं उन तक उनको पता होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी या हादसे की सूरत में वो 1124 पर कॉल कर सके और हमारी पेट्रोलिंग टीम उनको रिस्पॉन्ड करे। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट रिजवान भट्टी ने कहा कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हाई बीम लाइट्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है और किसी भी इमरजेंसी में पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करें। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।